شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صبح نماز کے لیے مسجد پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص محراب میں سویا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے بیدار کیا جائے۔ غلام نے قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ زنانہ لباس میں ایک سر کٹے ہوئے مرد کی لاش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ آخر کیا معاملہ ہے اور یہ لاش اس حال میں یہاں کیسے پہنچی۔ آخر اس معاملے کو سلجھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے تمام واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دہرایا۔ آپ نے فرمایا فی الحال اس لاش کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت کا انتظار کیا جائے جب 9 ماہ بعد اس مقام پر ایک بچہ نظر آئے گا۔ اس وقت تمام حال سب کے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے دریافت کیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور آخر 9 ماہ بعد بچہ کہاں سے آئے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے میرے بھائی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اس لیے اس وقت کا انتظار کیا جائے۔ وقت گزرتا گیا۔ ٹھیک 9 ماہ بعد ایک صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، اسی مقام پر جہاں کچھ عرصہ پہلے ایک سر کٹے ہوئے مرد کی لاش ملی تھی۔ اسی محراب سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ قریب گئے اور اس بچے کو گود میں اٹھا کے بے اختیار فرمایا بے شک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچا ہے اور اس کے ابن عم بھی سچے ہیں۔ آپ اس بچے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس بچے کے لیے ایک انصار داعیہ کا انتظام کیا جائے جو اس بچے کو دودھ پلائے اور اس کا تمام خرچہ بیت المال سے ادا کیا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کچھ عرصے بعد عید رمضان آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر عید کے دن مسجد میں لے جایا جائے اور حکم دیا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو پیار کرے اور داعیہ کو حکم دیا کہ جو عورت اس بچے کو پیار کرے اور یہ کہے کہ اے مظلوم، اے پسر مظلومہ، پس اس عورت کو میرے پاس لایا جائے۔ داعیہ آپ کے حکم کے مطابق بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد لے گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی نے آ کر اس بچے کو پیار کیا اور وہی الفاظ دہرائے۔ پھر جب وہ جانے لگی تو داعیہ نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضرت علی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤں گی۔ لڑکی پریشان ہوئی اور کہنے لگی خدارا ایسا نہ کرے، مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نہ لے جا، مجھے شرمندگی ہوگی۔ داعیہ اس کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی۔ آخر اس لڑکی کو کافی پیسوں اور اچھے کپڑوں کی لالچ دیا اور کہا کہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہ بتانا اور یہ بتانا کہ مجھے کوئی عورت ہی نہیں ملی تھی، اور اگر اس طرح تو عید الاضحیٰ کے دن بھی مجھے اس بچے سے ملا دے گی تو میں تجھے اس سے زیادہ کچھ دوں گی۔ داعیہ اس لالچ میں آ گئی اور وعدہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ نہ بتاؤں گی۔ داعیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تو داعیہ نے جواب دیا کہ مسجد میں نہ تو کسی عورت نے اس بچے سے پیار کیا اور نہ ہی کسی نے وہ الفاظ ادا کیے جو آپ نے ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے داعیہ کا کلام سننے کے بعد فرمایا تو سب کچھ جھوٹ کہہ رہی ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ جوان لڑکی آئی، تو نے اس کا دامن پکڑ، اس لڑکی نے تیرے سامنے التجا کی اور تجھے انعام کا لالچ دیا اور تو مان گئی، اور تو نے وعدہ کیا کہ میں عید الاضحیٰ کے دن بھی پھر اس بچے کو لاؤں گی، جس کے عوض وہ لڑکی تجھے بہت سا انعام دے گئی۔ آپ کی زبان مبارک سے سچ سننے کے بعد داعیہ گھبرا گئی، عرض کی کہ مجھے معاف فرما دیں، اب میں کبھی جھوٹ نہ کہوں گی۔ آپ حکم دیں تو میں اس عورت کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کروں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب تم عید کا انتظار کرو، جب وہ تمہیں ملے تو میرے پاس لے آنا۔ بس وقت گزرتا گیا، عید الاضحیٰ کا دن آیا۔ داعیہ بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد لے گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ جوان لڑکی آئی اور بچے کو اپنی گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ داعیہ نے اس کا دامن پکڑا اور کہا آج میں تجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ضرور لے جاؤں گی۔ لڑکی نے لاکھ کہا مگر داعیہ نہ مانی۔ داعیہ اس لڑکی کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا جو کچھ گزرا ہے میں بیان کروں یا تم کرو گی؟ لڑکی نے عرض کی کہ میں خود بیان کرتی ہوں۔
लड़की ने बयान शुरू किया, मेरा बाप उमर बिन साद जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमर काबे में शहीद हुए, मेरी माँ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इंतकाल कर गईं। मैं तन्हा रह गई। हमसाए की लड़कियों के साथ मनूस होकर इनके साथ ही वक्त गुजारती रही। हमसाए के सब लोग मेरा बेहद ख्याल रखते। एक दिन का जिक्र है कि मैं हमसाए के चंद अंसार और मुहाजिरीन लड़कियों के साथ बैठी थी कि ज़ईफ़ उम्र की औरत एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में तस्बीह थी, हमारी तरफ आई और सब लड़कियों से मिली। सब का नाम दरियाफ्त किया, सब की खैरियत दरियाफ्त की, आखिर मुझसे मिली। मेरे नाम पर दरियाफ्त किया। मैंने बताया कि मेरा नाम जमीला है। मेरे बाप उमर बिन साद थे जो शहीद हो चुके हैं। मेरी माँ भी इंतकाल कर चुकी हैं। इस बुढ़िया ने पूछा कि तेरी शादी हुई है? मैंने कहा नहीं। ये सुनकर कहने लगे कि तू कैसी लड़की है कि बगैर शोहर के ज़िंदा है। मेरे हालात सुनकर रोने लगी और मुझसे हमदर्दी जताने लगी। मुझसे कहने लगे कि अगर तू मेरी खिदमत पसंद करे तो मैं हाजिर हूँ। मैंने भी हाँ कर दी। इस बुढ़िया ने कहा कि एक शफीक माँ की तरह तेरा ख्याल रखूँगी, तुझे कोई गम ना होने दूँगी, तेरी हर खुशी का ख्याल रखूँगी। मैं इस बूढ़ी औरत को अपने घर ले आई और हर तरह से वो मेरा ख्याल रखती। मैं भी एक शफीक माँ की हैसियत से उसका एहतराम करती और उसका हर तरह से ख्याल रखते हैं। जब रोज़ा इफ्तार का वक्त आया तो मैंने उसके लिए मुनासिब खाने का इंतज़ाम किया। बुढ़िया इस खाने को देखकर रोने लगी और कहा, ऐ डॉक्टर, मैं तो अल्लाह वाली हूँ, मेरी ये ग़िज़ा नहीं, मुझे सिर्फ नमक और जौ की रोटी चाहिए, ये मेरी खुराक है। गर्ज के इस बुढ़िया ने हर तरह से अपनी पारसाई का सिक्का मेरे दिल में इस तरह जमा दिया कि मैं उसे अपना निगहबान समझने लगी। एक दिन कहने लगी कि मुझे ज़माने से बड़ा डर लगता है, तू तन्हा रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं हाजत के लिए बाहर जाऊं, तुझे कुछ हो जाए, इसलिए तुझे एक अच्छे साथी की ज़रूरत है जो तेरा हर तरह से ख्याल रखे। अगर तू इजाज़त दे तो मैं अपनी बेटी को ले आऊँ जो तेरी हम उम्र है, जो कि इंतहाई मुत्तकी और परहेज़गार और नमाजी है। मैंने उस लड़के की तारीफ़ सुनी तो बेख्तियार कहा कि उसे फ़ौरन ले आओ। इस तरह मेरा दिल भी बहल जाएगा और उस सोबत से अच्छे असरात मुरतब होंगे। बुढ़िया मेरे इसरार पर उसी वक्त ही अपनी बेटी को लेने के लिए रवाना हुई। कुछ देर बाद तन्हा ही वापसी आई तो मैंने आते ही पूछा कि मेरी बहन को क्यों नहीं लाई। बुढ़िया ने जवाब दिया कि मेरी बेटी तन्हाई पसंद है, इसका सारा दिन अल्लाह की याद में गुजरता है। तेरे घर में अक्सर मुहाजिर और अंसार की लड़कियां आती हैं, इस वजह से उसने यहाँ आना पसंद नहीं किया। बुढ़िया का जवाब सुनकर मैं और ज़्यादा मुतासिर हुई और मेरे दिल में इस लड़के से मिलने की तड़प और बढ़ी। मैंने बुढ़िया से वादा किया कि अब मैं किसी को अपने घर में ना आने दूंगी, आप फ़ौरन जाकर मेरी बहन को ले आएँ। बुढ़िया मेरे इसरार पर उसी वक्त रवाना हुई। कुछ ही देर बाद बुढ़िया एक जवान औरत को अपने हमरा लिए हुए अंदर आई। इस औरत ने अपने जिस्म को चारों तरफ से छुपाया हुआ था। इसकी दो आंखें नज़र आ रही थी। ये जवान औरत दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा कि बहन अंदर क्यों नहीं आती? बुढ़िया ने जवाब दिया, ये लड़की बड़ी हयादार है, इसे शर्म आती है। ये कहकर बाहर चली गई कि मैं अपने घर को ताला लगा कर अभी आती हूँ। बुढ़िया के जाने के बाद मैंने इस औरत से कहा कि बहन बुर्का उतार कर आराम से बैठो, ये तुम्हारा अपना घर है। इस औरत ने सर के इशारे से बाहर के दरवाजे को बंद करने के लिए कहा। मैं समझ गई कि बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ है, ये चाहती है बंद कर दिया जाए। मैं दोबारा बंद करके अंदर कमरे में दाखिल हुई। वो औरत उसी तरह कपड़ा लपेटकर पलंग पर बैठी थी। मैंने हाथ से उसकी चादर खींच ली। चादर खींचते ही ये देखकर परेशान हो गई कि ये औरत तो नहीं बल्कि स्याह दाढ़ी वाला एक बुलंद कामत मजबूत जिस्म का एक मर्द है। मैं इसे देखकर आपे से बाहर हो गई। मैंने कहा, क्यों मुझ यतीम पर जुल्म करता है? खुदा का खौफ कर, क्यों मेरी रसवाई करता है? कोई देख लेगा तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। खुदा के लिए खामोशी से यहाँ से निकल जा। लाख इसकी इल्तिजा करती रही मगर इसे मुझ पर रहम नहीं आया। मैं इसके करीब से उठकर भागना चाहती थी मगर इस जालिम ने अपने मजबूत बाजुओं से मुझे जोर से समेट लिया। इसे मुझ पर रहम नहीं आया। उसने मुझ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी और मैं बेबस और मजबूर हो गई। चीखो पुकार इसलिए ना की कि हमसाए लोग मुतला हो जाएंगे और मेरी रसवाई होगी। मैं इसके जंगल में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुकी थी। बिल आखिर इस जालिम ने मुझ पर जुल्म किया, मेरी दोशीदगी चलाक कर दी। ये सियाह मर्द अपनी मस्ती में बदहोश था। मैंने करीब पड़ी हुई छड़ी से इस पर वार किया और पहले ही वार में इसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। जब रात हुई तो उसकी लाश मस्जिद के महराब में रख दी। कुछ दिनों बाद एहसास हुआ कि अमल ठहर गया है। कई मरतबा हमिल को ताकत करने का इरादा किया
मगर खुदा के खौफ से ऐसा ना कर सकी। आखिर ये बच्चा पैदा हुआ, इसे भी कत्ल करने का सोचा मगर खुदा के खौफ से ना कर सकी। आखिर इस बच्चे को भी इसी मेहराब में रखाई। तमाम हालात सुनने के बाद बेइख्तियार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे हैं और आपके भाई भी सच्चे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ्त किया, अब इस औरत के लिए क्या हुक्म है? आपने फरमाया, इस मकतूल का खून बहा कुछ नहीं, क्योंकि एक गुनाह अजीम का मर्तकब हुआ है। इस औरत पर कोई हद नहीं, क्योंकि इसकी रजामंदी के बगैर वो शख्स इस पर गालिब हुआ। इसके बाद आपने फरमाया, इस बुढ़िया को हाज़िर किया जाए ताकि खुदा के हक़ को इससे तलब करूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दाइया को हुक्म दिया कि बच्चे को इसकी माँ के सुपुर्द किया जाए। दूसरे दिन तलाश के बाद इस बुढ़िया को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश किया गया। अब बुढ़िया ने जमीला को पहचानने से इनकार कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ बुढ़िया, क्या तू कसम खाती है कि तुझे इस वाक़े का कोई इल्म नहीं? बुढ़िया ने कहा, हाँ, मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खा कर कहती हूँ, मुझे इस वाक़े का कोई इल्म नहीं। बुढ़िया ने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झूठी कसम खाई थी। कसम खाते ही बुढ़िया का चेहरा स्याह हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ बुढ़िया, अपना चेहरा आईना में देख। बुढ़िया ने अपना स्याह चेहरा देखा तो फरियाद करने लगी और हकीकत का एतराफ़ किया कि मैं सब कुछ जानती हूँ और मेरी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है और मुझे माफ़ फरमाएँ, मैं अपने किरदार से ताइब हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ फरमाई, ऐ खुदा, अगर ये औरत सच कहती है और दर्द हकीकत ताइब होती है तो इसे पहले हाल में पलटा दे। मगर इस चेहरे की स्याही ख़त्म ना हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मौलाना, तू किस तरह की ताइब हुई है कि खुदा ने तुझे माफ़ ही नहीं किया? फिर आपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, इस बुढ़िया को मदीने से बाहर ले जाकर रजम करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।